Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So some of you have asked this question, sir, how to retain current affair? I prepare the current affair, but I forget it. What is the remedy? For current affair, I have suggested you two sources. Link is there. Click the link. You will land up on an app. Download the app. Take 2024 plan. Apply coupon code AA03. You will have 10% off and access to daily, weekly, monthly PDFs. Second good source is SmartKida Current Affair Mock Drill from the link that is available in the description box. Buy that Current Affair Mock Drill of 2024 and apply coupon code AA03 to have 10% off. Now the best strategy to retain current affair is revision of current affair time and again. So what should be our strategy if we are starting current affair from now onwards? So first read the daily current affair. Note down the bullet points and try to revise this current affair after a gap of 3-4 days. Then for all completed months, you should read current affair from the monthly PDFs. Alternately, you can use the weekly PDFs also. So either weekly or monthly PDF should be used to cover the previous current affair. And here also you should move backward. That means if you are in the say month of February, so first you will cover the January month, then move to December month, then move to November month, then to October and so on. Go on as back you can. Now your focus should be what is your next date of exam. Say some exam is scheduled for June. So at least from 1st January to June you should cover. 6 months is a comparatively safer period. In some exams the most of the current affair is only from 1 month, 2 months before the examination. In some exam it can be 3 to 4 months before the examination. Some exam it can be from 5 to 6 months before the examination. Last year in some exam even it has come from 8 months from the date of examination. Usually the safer recourse is 12 months, but sometimes covering 12 months is very difficult. So at least a candidate must cover the 6 months. Say I am planning to appear in first examination for the month of August. So the 1st February onwards can be safer. Say if you are focusing on RRB exams. So even if you start from the daily current affair now, still you can be in safer zone. So always have a date in mind which exams you are planning, and at least 6 months before that exam should be your area that you will cover. So to retain the current affair, it is important that you should give some time daily on the current affair. And after giving some time daily on the current affair, you should revise with a gap of 8 to 10 days, 5 to 7 days, depending upon the availability of time. And you should also allocate some time daily to the current affair. You can allot 1 hour a day, 2 hours a day, depending upon availability of time. But the current affair should be your regular habit. So if you make it a habit, you can gain lot of current affair. Some people are comfortable in watching the videos of current affair. You can watch it. But my own experience says if you prepare from PDFs, you can cover more current affair in lesser time. But if you have liberty of lot of time, then you can mix up the videos along with PDF. PDF in my opinion is more effective than videos because video lengths are sometimes too much and the content that you will draw for 1 hour or 2 hour session may not be that much. If you read yourself, you can skip something, you can do the selective reading also. So that's why your efficiency may improve if you are using the PDFs, because this is the experience of lot of candidates. Those are sharing with me and they found the PDFs as most effective tool for covering the current affair. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों का प्रश्न है सर करंट अफेयर रिटेन नहीं हो पाता, करंट अफेयर मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ,
करंट अफेयर में ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे को करंट अफेयर याद रहे। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि करंट अफेयर का जो अच्छा माध्यम है तैयारी करने का वो पीडीएफ्स है। कुछ लोग वीडियो सेशंस भी करते हैं, पर ऐसा देखने में आया है कि पीडीएफ से आप ज़्यादा तैयारी कर पाते हैं कम समय में वीडियोस के मुकाबले। बाकी आपकी चॉइस है, आप पीडीएफ और वीडियोस को दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर हम लेके चलें कि भाई 1 घंटा मान लो मैं वीडियो पे लगाऊं तो कितनी करंट अफेयर मैं कवर करूंगा, और उतना ही 1 घंटा मैं पीडीएफ पे लगाऊं तो वहाँ सेलेक्टिव रीडिंग करके कितनी करंट अफेयर मैं कर पाऊंगा। तो आप एफिशिएंसी में देखेंगे कि पीडीएफ के जरिए आप ज़्यादा न्यूज़ कवर कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से पीडीएफ एक अच्छा सोर्स है करंट अफेयर को तैयार करने का। बाकी हर कैंडिडेट की अपनी मर्जी है कि उसको खाली पीडीएफ से करना है, खाली वीडियो से करना है या कॉम्बिनेशन से करना है। 2 पीडीएफ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा। एक है क्लाउड अफेयर। क्लाउड अफेयर बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसका लिंक मैंने आपको दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप एक ऐप पे पहुँचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और 2024 का प्लान ले लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। यहाँ आपके पास डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ्स आ जाएंगी। दूसरा है स्मार्ट कीड़ा करंट अफेयर मॉक ड्रिल, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है, उसको आप यूज़ करिए। ये स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आपको मिल जाएगा और जो मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से भी मिल जाएगा। 2024 का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो मान लो हम करंट अफेयर करना चाहते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। पहला तो ये है, जिस दिन से आप करंट अफेयर की पढ़ाई शुरू करते हैं डेली पीडीएफ के जरिए आप इसको शुरू करिए। मान लो आज से आप शुरू कर रहे हैं तो कल का पीडीएफ है वो देख लीजिए या परसों का पीडीएफ देख लीजिए। इसके बाद जो कंप्लीटेड मंथ्स हैं या कंप्लीटेड वीक्स हैं उसके वीकली पीडीएफ या मंथली पीडीएफ से पढ़ाई करिए। मीन्स अगर मान लीजिए मैं अभी कर रहा हूँ तो जनवरी का जो कंप्लीटेड मंथ है मंथली पीडीएफ जनवरी का देख सकता हूँ, फिर दिसंबर का, फिर नवंबर का, इस तरीके से पीछे पीछे जा सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये भी चुनाव करना है कि मेरा कौन सा एग्ज़ाम कब आने वाला है। मान लो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त के अंदर, तो कम से कम 1 फरवरी से मुझे कवर करनी चाहिए। फरवरी अभी चल रही है, बड़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं यदि अभी से पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। मान लो कोई एग्ज़ाम जून में है तो आपके पास कम से कम 1 दिसंबर या 1 जनवरी से आपको करना चाहिए 2024 से। तो 6 महीने पहले आप अपने दिमाग में रख लें डेट क्या है और उससे 6 महीने पहले से करें। और अगर आप इसको आदत में ही शामिल कर रहे हैं, रोज की रोज करंट अफेयर करें, तो उससे अच्छी चीज़ तो कोई नहीं है। अब कई बार क्या होता है, मैंने करंट अफेयर पढ़ी, मैं भूल गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम उसकी रिवीजन नहीं कर रहे। तो जो भी हम करंट अफेयर पढ़ें उसको 8-10 दिन के बाद रिवाइज जरूर करें। एक अपनी फ्रिक्वेंसी आप बना लीजिए कि जो चीज़ आज मैंने पढ़ी है मैं 10 दिन बाद फिर उसको रिवाइज करूँगा, या जो 10 दिन पहले मैंने पढ़ी है उसको मैं आज रिवाइज करूँगा। तो अगर आप साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे, रोज अपना एक टाइम एलोकेट कर देंगे कि 2 घंटे मुझे करंट अफेयर करनी ही करनी है और रेगुलर वे में करंट अफेयर की आदत डाल लेंगे, तो करंट अफेयर आपका एक फोर्टे बन सकता है, करंट अफेयर आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन सकता है। चॉइस आपकी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वीडियो से करें पीडीएफ से करें। मेरा मानना यह है कि पीडीएफ में कम समय में आप ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं, वीडियोस में टाइम स्पेंडिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। आप इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, खाली पीडीएफ भी कर सकते हैं, और किसी को वीडियो पसंद है वीडियो से कर सकते हैं, मगर वीडियो में टाइम बहुत लगता है। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 1 घंटा हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें क्योंकि आप सेलेक्टिव नहीं देख पाते, जो कुछ स्पीकर बता रहा है वो सारा ही देखना पड़ता है, तो कई बार उसमें जो कंटेंट आप कवर कर पाते हैं वो कम होता है बानिस्बत। यदि आप खुद पढ़ रहे हैं पीडीएफ से तो आप उसमें कई चीज़ें स्किप करते जाते हैं, कोई फास्ट रीडिंग करते जाते हैं और उससे काम बन जाता है। मगर अगर मुझे रिटेन करना है कोई भी चीज़, तो रिटेन करने का एक ही तरीका होता है कि एक तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके बुलेट पॉइंट कहीं नोट कर लूँ और फिर मैं एक टाइम गैप के बाद उसको रिवाइज जरूर करूँ। तो 2 सोर्स मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों को आप आजमा के देखिए, बहुत अच्छे सोर्स हैं। हर साल लोगों को इसमें मदद मिलती रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल।